having a father who has predicted accident of Diana and assassination of Rajiv Gandhi. Rajiv Gandhi's assassination was very unfortunate, and from his side, he had written a letter then to the PMO and requested him not to travel towards the southern part of India, and he had categorically mentioned this in the letter. Given a choice, would you want to have coffee with Saturn or cocktail with Venus? You cannot have cocktail with Venus unless you have had coffee with Saturn. कर्म करेंगे तभी तो उसका फल मिलेगा. So This you is a must good one. have coffee with Saturn first, do the karma, and then enjoy the results of your karma in form of Venus. Hi everyone. Welcome to my show, Hash Brown, a place where we serve you bold conversations, crunchy insights between life, health, and everything in between. Today's episode is very special to me. It is about a topic which is intriguing to all of us: astrology. Yes, you heard that right. What do you think? Is it science? Is it a faith? Is it destiny? Or is it luck? Well, to know more about this topic, I have with me an eminent personality, Mr. Yash. Welcome to the show, Yashi. It's an absolute honor to have you on my show. Thank you so much, Niharika, and God bless you. Thank you. I want to start first question, which is absolutely important to me personally, that you belong to a legacy. You have your forefathers who've been into astrology, and having a father who has predicted, accident of Diana and assassination of Rajiv Gandhi, that is a kind of legacy that you carry. How has your childhood been living around such values, and how has it impacted you? Yeah, so I'm one of those few fortunate ones who have been born in a staunch Hindu family where Sanatan Dharma, astrology, Vedic astrology, these deep occult sciences were given a lot of significance. And my father had that blessing of God, due to which he could make certain accurate predictions of many world leaders. Rajiv Gandhi's assassination was very unfortunate, and from his side, he had written a letter then to the PMO and requested him not to travel towards the southern part of India, and he had categorically mentioned this in the letter. And the reply also came from the PMO saying that he was a prime minister and he could not restrict his travel across the length and breadth of the country. Yeah. But विधि के विधान को कोई टाल तो सकता नहीं बिल्कुल सही है. बात So है. this was सही बात है. there in his chart and very accurately predicted. So yes, my childhood, I have seen a lot of scholars visiting our house, and right from the common man to the top politicians or the top business people from across India have visited and met my father, seeked his blessings and guidance. And I think I'm thankful to God that I was able to inherit a part of his knowledge, and it has really transformed me. But yes, I can say that my childhood has been full of knowledge, good things around me, and good Vedic mantras chanting. My grandmother, late Dr. Sharda Devi Vidyalankar, Ji. was the first woman in Bihar to get her PhD degree. Oh my God, wow. And she was later the chairman of Bihar Secondary Education Board. And not even a single day I found that she had not done the Havan by the Arya Samaj style. So Wow. that has also inculcated in me and my brother a certain sanskar which we have carried till date. So this Sanatan Dharma Vedic astrology has been running since childhood, and I'm very proud to say that God has chosen us to learn this science and impart the knowledge, whatever we have learned, in a very small and a humble way. No, indeed. I think it's you're one of the most lucky, blessed, and privileged ones to Yes, keep the baton yes. and the flag of Sanatan Dharma going, and the flame rising up and high. So, I think we need more people like you to guide others. Oh yes, Definitely. absolutely. It's a beautiful science, and I tell many people that if you really need to understand the secrets of your life and realize the purpose of your life, then this is one tool which you can imbibe and kind of improvise on your understandings of life. Sure. Yeah. But very interesting. Yeah. And I think you worked in the corporate field. Oh yes, I worked in the corporate field for a very long time. Yeah. And I started my career in 1996 with Reliance Industries, and my last position was as a senior vice president in one of the
top media companies in India, and I enjoyed thoroughly my corporate career. I held various positions at different organizations, and it gave me a lot of learning and wisdom of the business world. But I think there was a calling, inner calling, where I felt that this is my passion and I must pursue it. And also, the larger reason was that I wanted to carry the legacy of my father and, in a very small way, give back something to the society. Whatever knowledge I have accumulated from past many years, because he was my first guru. Of course. So after that, I have read a lot about it. I've researched a lot. So I think that kept me going. So yes, the journey in corporate was splendid. There's no So, doubt as an about it. engineer, then you worked in the corporate, and then you've now into spiritual guidance and astrology. This is Yeah. very, very varied and very drastic shifts of career by choice. So because I have learned little bit of astrology, you'll be surprised to know that astrology and occult science in the field of engineering are represented by the same house in the horoscope. Oh, okay. So, all the engineers out there, I think they have a same future. Yeah, so there are 12 houses in the horoscope, and each house has its own significance. But the eighth house represents occult science, all kinds of occult science, that is astrology, Vastu, Tantra Mantra, Sadhana, research, engineering, transformation, insurance, banking. You see, an engineer, while he's doing engineering, also has to go to a lab and work on his EDC machine. If you're an electronics engineer, you'll be able to relate to me. You have to work on a certain apparatus and note down the readings of that apparatus. That is also a part of research. So any person, any engineer, when he researches, he becomes a good engineer. So engineering, core engineering, and something also which is below this earth, like petroleum, petroleum engineers, mining engineers, for Wow. that matter, any kind of engineering and astrology belong to the same house. So I think that has been the relevance. Interesting. Yashi, speaking of books, I think आपने भी किताब लिखी है, and जी जी it is wonderful to know that I think people who don't understand astrology, that हमें लगता है that when there is a obstacle or a crisis in our life, हम तब पत्री दिखाते हैं direction के लिए, मार्गदर्शन के लिए. But आपने जो किताब लिखी है, you have actually closed the loop, and it is the need of the hour, which is to simplify astrology. It is very interesting. Please talk about the book. तो एक प्रयत्न रहा है जी. एस्ट्रोलॉजी के कुछ सूत्रास को सिंप्लीफाई करने का, बट मैं यहाँ क्लियर कर दूं कि ये तो बहुत छोटा सा प्रयत्न है, बिकॉज एस्ट्रोलॉजी तो एक विशाल सागर है. एक ही किताब में पूरी एस्ट्रोलॉजी को उतारना तो संभव नहीं है. बट मैंने जो मेरे से अक्सर जो क्वेश्चंस पूछे जाते थे फ्रॉम द क्लाइंट्स मेरे कंसल्टेशन के समय, उस समय जो बहुत प्रोमिनेंट क्वेश्चंस थे उसको मैंने कहीं नोट किया था, और उसको सिंप्लीफाई करने के लिए कि रीडर अगर थोड़ी बहुत एस्ट्रोलॉजी अपने आप भी करना चाहे तो उस किताब को पढ़ के अपने हॉरोस्कोप से रिलेट करके खुद ही वो एनालाइज कर ले. Wonderful. सो व्हाई टू कम टू एन एस्ट्रोलॉजर व्हेन यू योरसेल्फ कैन एनालाइज थिंग्स. I must say, जी. because and I'm taking this selfish opportunity to say this, कि बहुत कम लोग हैं जो अपनी विद्या को दूसरों को एम्पावर करने के लिए यूज करते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे पास लोग आते रहें जी जी एंड डिपेंडेंसी रहे हम पे. जी जी आप उनमें से ये वेरी वेरी फ्यू पीपल यू नो व्हिच इज हु इज वेरी कॉन्फिडेंट एंड हम्बल्ड टू शेयर देयर नॉलेज, और आप चाहते हैं कि लोग उसको जी. तो empower हों. मैं निहारिका जी ऐसा मानता हूँ कि जो भी आपने एक्वायर किया इन टर्म्स ऑफ नॉलेज, यू जी. मस्ट इम्पार्ट इट बैक टू द सोसाइटी. बिल्कुल ठीक. I और agree. जितना आप इम्पार्ट करेंगे जी. उतना ही आपको नॉलेज वापस मिलेगी. which is आप so जितना लोगों को ब्लेस करेंगे उतनी ही ब्लेसिंग्स आपको true. मिलेगी. जी जी. और इसलिए मेरा ऐसा सोचना है कि अगर विद्या, सरस्वती तो एक ऐसी चीज़ है कि कभी आपसे जाती नहीं हाँ है. जी. आप बिल्कुल जितना भी एक्वायर कर लीजिए. बिल्कुल. इसलिए हमारे समाज में एक टीचर को और एक शिक्षक को सबसे ऊंचा स्थान दिया गया बिल्कुल सही है ना. बात गुरु है. को जी. सबसे ऊंचा स्थान दिया गया है, बिल्कुल बिकॉज ही इज इम्पार्टिंग समथिंग विच ऑल ऑफ अस नीड. या सो दैट्स द जी. थॉट बिहाइंड इट. बहुत छोटा सा प्रयत्न है. दूसरी किताब भी लिख रहा हूँ, अरे देखिए वाह. कब रिलीज होगी, चलिए बट अभी हम तो टाइम लगेगा. आपके जी. माध्यम से हम चाहेंगे आप यहाँ रिलीज करें, एंड आई वुड जी, रियली जी. वांट यू टू शो द बुक टू माय ऑडियंसेस Yeah, आल्सो. sure. I would like to show the book. It has been released published by Asian Press and released on Amazon. Oh, excellent. ये Simplified Sutras of Vedic Astrology. It's a small book, almost 100 pages, but I have tried to cover many topics in this.
इंक्लूडिंग शेख हसीना's horoscope is also mentioned. उसके अच्छा। बारे में पूरा विवरण किया गया है कि क्यों हुआ था उसके साथ ऐसा. तो this is my book. If you are an ardent learning astrologer, please try to buy it. And if somebody is buying this book, maybe I can give him a 15-minute of free consultation as well. So that is definitely ओह, ये मैं आप आप में बिल्कुल रखिए ओह, थैंक यू और सो इसको मच। जब भी आपका लीजर टाइम होगा आप पढ़ने की कोशिश दिस इज कीजिएगा. एब्सोल्युटली स्पेशल। जी, दिस इज अ वंडरफुल बुक। थैंक यू सो Most मच एंड आई welcome. थिंक आई नीड टू रीड दिस आल्सो। Absolutely. थैंक यू अर्शी। स्पीकिंग एस्ट्रोलॉजी, जो लोग इसको नहीं समझते, लोगों को लगता है कि ये डेस्टिनी है, साइंस है, फेथ है, जी जी. किस्मत है, क्या कहेंगे आप? व्हाट इज इट? व्हाट इज एस्ट्रोलॉजी? देखिए एस्ट्रोलॉजी जो आपका हॉरोस्कोप है वो एक स्नैपशॉट है स्काई का जब आपका जन्म हुआ था. किसी भी हॉरोस्कोप में 12 घर होते हैं, 12 राशियां होती हैं और 9 प्लैनेट्स होते हैं, जिसमें कि हम राहु और केतु को प्लैनेट तो नहीं कहते हैं, एनर्जीज कहते हैं. साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट नोड पे रिजाइड करता है वो मून जी। के. तो बेसिकली वो एक स्नैपशॉट है. तो अगर किसी के हॉरोस्कोप में पहले घर में 4 नंबर लिखा हुआ है तो वो कर्क लगन का हो गया. यानी कि जब उसका जन्म हुआ था तो ईस्टर्न होराइजन ऑफ द स्काई में हम्म। कर्क लगन अच्छा। प्रेवलेंट था. अच्छा। तो ये उसका लगन हो गया. तो उसकी जो पर्सनैलिटी होगी कैरेक्टरिस्टिक्स वो होंगे। कर्क लगन के ही हिसाब से ओह। होगी. कर्क लगन का स्वामी चंद्रमा है, मून है. तो अब मून का कहाँ प्लेसमेंट है ये हम हॉरोस्कोप में देखेंगे. एक तो जो मून के एट्रीब्यूट्स हैं, मून के क्या एट्रीब्यूट्स हैं, आपकी माँ है, आपकी मदर है, स्टेट ऑफ माइंड है, इमोशन है, द वाटर कंटेंट इन योर बॉडी है, जनरल वाटर बॉडीज हैं, मिल्क है, मिल्क प्रोडक्ट्स हैं. मून जिस घर में बैठ जाता है वहाँ से वो वेल्थ एश्योर करता है. तो अगर आपके थर्ड हाउस में बैठा है तो आपके हॉबीज से अगर आप किसी प्रोफेशन में जाएंगे तो वो आपको पैसा जरूर देगा. अच्छा। तो वो सारी प्रतिभाएं, वो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स जो मून के हैं जी या कर्क लगन के जो हैं, कर्क लगन वाले बेहद सेंसिटिव होते हैं. जी। क्योंकि जब आपकी भावनाएं जी को मून रिप्रेजेंट कर रहा है, स्टेट ऑफ माइंड और जी। इमोशन को, तो ऐसे लोग बेहद इमोशनल सेंसिटिव होते हैं. जी। और कर्क लगन के वालों को मैं अक्सर ये हिदायत देता हूँ कि आप प्लीज़ ट्रैवल कीजिए, आप प्लीज़ घूमिए, अच्छा। परिक्रमा कीजिए, आप प्लीज़, आपका मन नहीं लग रहा है तो घूम के आ जाइए कहीं. बिकॉज मून ट्रैवल्स इन 27 नक्षत्रास इन 27 डेज. अच्छा। वो कहीं स्थिर नहीं होता है. इट इज़ द फास्टेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम. अच्छा। तो जो एट्रीब्यूट्स हैं उस लगन के, उस प्लैनेट के, अगर आप उसमें भरपूर पाएंगे. बट इतना ये इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है निहारिका कि आप अपनी लाइफ को अनकॉम्प्लिकेट कर सकते हैं इस सब्जेक्ट के द्वारा. बिल्कुल, मेरा आपसे यही सवाल था हाँ नेक्स्ट। हाँ. जी। तो ये एक बड़ी ब्लेसिंग है. और एक बात और है कि यू कांट चूज एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी हैज टू चूज यू. इसका यू क्या शुड मतलब है? हैव, मतलब कुछ प्लानिटरी कॉम्बिनेशंस ऐसे होते हैं हम्म, कुंडली में हम्म। कि अगर वो हैं तो आपको एक एस्ट्रोलॉजर बनने में आसानी होगी. 5th हाउस का केतु अच्छा। जैसे हम मानते अच्छा। हैं कि बहुत अच्छा एस्ट्रोलॉजर बनाता है. सैटर्न केतु का कंजंक्शन बहुत अच्छा एस्ट्रोलॉजर बनाता है. मून इन द 8th हाउस वो माइंड रीडर होता है, वो बहुत अच्छा एस्ट्रोलॉजर, काउंसलर, साइकेट्रिस्ट बन सकता है. अच्छा। सैटर्न केतु मून का कंजंक्शन, शनि आपका कर्म है, केतु आपकी कंसल्टेंसी है, शून्यता है, नथिंगनेस है. और जो मून है वो आपका स्टेट ऑफ माइंड है. तो जब सैटर्न केतु मून का कंजंक्शन किसी की कुंडली में पाएंगे तो ऐसा आदमी बहुत अच्छा हीलर, एस्ट्रोलॉजर, इवन आई वुड से साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट बन सकता है. और एक बड़ी आपको ज़बरदस्त बात बताता जी। हूँ, जो लोग डिप्रेशन से जूझ रहे हैं, अगर वो साइकोलॉजी पढ़ें, एस्ट्रोलॉजी पढ़ें और किसी को वो काउंसिल कर दें, तो आप देखेंगे कि उनका खुद का भी डिप्रेशन बहुत अच्छे से चला जाएगा. जिसको उन्होंने काउंसलिंग दी है वो तो इससे बेनिफिट करेंगे ही करेंगे, पर आप खुद भी अगर इस साइंस को पढ़ रहे हैं और आप डिप्रेशन के शिकार हैं तो आप खुद भी बहुत रिलीव्ड फील करेंगे. ये आप करके देख सकते हैं रियल लाइफ में. एंड यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट्स कैसा हुआ है कि नहीं. तो जी. ये कहना उचित होगा कि एस्ट्रोलॉजी इज अ प्योर साइंस। एस्ट्रोलॉजी इज अ प्योर साइंस, एब्सोल्युटली. मतलब हमारे महर्षि पराशर की देन है ये जी भारत को. जी। और पराशर जी कौन थे? वो ऋषि वशिष्ठ के पौत्र थे, उनके ग्रैंडसन थे. ऋषि वशिष्ठ कौन थे? भगवान राम के गुरु थे, दशरथ महाराज के यहाँ गुरु थे वो, जी। है ना. तो उनके वो ग्रैंडसन थे पराशर ऋषि. और हम जितने भी लर्निंग एस्ट्रोलॉजर्स हैं या एस्ट्रोलॉजर्स हैं, हमारे लिए उनकी एक पुस्तक है बृहद पराशर होरा शास्त्र.
जो हमारे लिए बाइबल है। तो विष्णु पुराण जो एक बहुत सिद्ध मंत्र जी है, जी उसकी पूरी स्थापना, उसका लिखना, स्ट्रक्चर करना, स्क्रिप्चर करना, ये ऋषि पराशर ने किया था। और फिर उन्होंने वेद व्यास को दिया जो उनके पुत्र थे, और धीरे धीरे फिर वो वेदों में कन्वर्ट हुआ और फिर हमारे तक पहुंचा। तो आज के दिन में एनी एस्ट्रोलॉजर, उसकी जो बाइबल है वो BPHS, बृहद पराशर होरा शास्त्र है। अच्छा। तो उसमें अभी भी संस्कृत के कई श्लोक हैं जिसका आप अनुवाद कर सकते हैं, और वो फिर आपको प्रेडिक्शंस की तरफ ले जाता है। तो प्रिडिक्शन से मेरा एक सवाल है आपसे कि जी प्रिडिक्शंस, जैसे हम डॉक्टर के पास तभी जाते हैं जब हमें कोई तकलीफ होती है, जी जी लोग एस्ट्रोलॉजी को सपोर्ट तभी लेते हैं जब उन्हें लगता है कि अब कुछ नहीं हो रहा। जी 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 तो ये आपकी बातों से मुझे ऐसा लगता है कि दिस इज अ साइंस कि ये अगर आप इसको एज अ टूल यूज करते हैं तो आप जिंदगी का डायरेक्शन डिफाइन होने में आपको सहयोग मिलेगा। हाँ, पर अनफॉर्चुनेटली आज के दिन में जो लोग हैं वो, उन्होंने एस्ट्रोलॉजी को एक रेमेडी सेंटर बना लिया है, एग्जैक्टली, दैट्स जबकि व्हाट वो आई वांटेड रेमेडी टू आस्क। सेंटर है नहीं। जी बिल्कुल। अगर आपने एस्ट्रोलॉजी की पढ़ाई करनी शुरू की तो आपको पता चलेगा कि जो घटनाएं आपके साथ घट रही हैं उसका कोर रीजन क्या है। अगर आपका चंद्रमा पीड़ित है आपकी कुंडली में, हम्म। यानी कि आपकी माँ स्टेप मदर हो सकती हैं, आपकी माँ को कोई बहुत बड़ी क्रॉनिक डिजीज हो सकती है, आपकी माँ ज्योग्राफिकली आपसे दूर रह सकती हैं, आपकी माँ की हेल्थ खराब हो सकती है। हम्म। चंद्रमा अगर पीड़ित है तो वो आपको ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर भी दे सकता है, डिप्रेशन भी दे सकता है, क्योंकि वो स्टेट ऑफ माइंड को भी दर्शाता है। तो अगर चंद्रमा पीड़ित है तो चंद्रमा का उपाय करें। बहुत सरल उपाय है कि अपनी माँ की सेवा करें, मूनलाइट लें, चांदी का कड़ा पहनें, जहाँ जिस कक्ष में आप सोते हैं उसके अंडर में एक लोटे में चांदी का सिक्का रख के पानी डाल के आप सो सकते हैं। तो जो प्लैनेट पीड़ित है उसकी सेवा करें, उसकी रेमेडी करें। ये जो जनरल रेमेडीज होती हैं कि आप कोई नंबर लिख दीजिए किसी वॉल पे या ऐसे कपड़े पहन लीजिए, ये कोई रेमेडी नहीं है जो आजकल यूट्यूब पे आई बहुत थिंक क्विक प्रेवलेंट है। फिक्सेस हैं वो। हाँ, दिस इज मोर फॉर एंटरटेनमेंट। राइट राइट। क्योंकि किसी को ऐसे बहका देना और गलत चीज़ कह देना, मैं समझता हूँ बहुत ही गलत है, नहीं, वो सही बात है, अनएथिकल सही है। बात है। तो सिंपल यही है कि एस्ट्रोलॉजी में रेमेडीज का काम करना थोड़ा डिफिकल्ट है, बट जो प्लैनेट आपको तकलीफ दे रहा है अगर उससे रिलेटेड आप काम करें तो कुछ हद तक आपको रिलीफ मिलेगा। बट ये ना समझें कि एस्ट्रोलॉजी एक रेमेडी सेंटर है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो अगर कोई क्लाइंट आता है ये सोच के कि उसकी तकलीफ दूर हो जाए, वो नहीं हो पाएगी। अच्छा। शनि की महादशा चल रही है तो शनि का जो कैरेक्टर है वो उसकी महादशा में पूर्ण तरीके से दिखाई देगा। शनि इज अ टास्क मास्टर, शनि इज नोन फॉर डिसिप्लिन, अ वाइज मैन, अ वॉन्डरर। शनि पीड़ा भी देता है, मिजरी भी देता हाँ, है। मतलब लोगों को डर लगता है, मेरी तो शनि की महादशा डरने की है, कोई मंगल बात की नहीं है। महादशा है। ये है कि सोलर सिस्टम में शनि जो है सूर्य से सबसे दूर बैठे हैं। सोलर सिस्टम में जो सबसे दूर प्लैनेट है सन से, वो शनिदेव है, इसलिए उन पे रोशनी पड़ती नहीं है, सनलाइट पड़ती नहीं है, जी जी वो जी, डार्क प्लैनेट डार्क बन प्लैनेट गए। जी। तो अब डार्क प्लैनेट थोड़ा सा, जब भी शनि की किसी की महादशा चलेगी उसको एकांत पसंद होगा। धीरे धीरे वो धीरे धीरे डिटैच होना शुरू होगा। शनि अगर कुंडली में अच्छे प्रभाव में है, अपनी ही राशि में बैठ जाए, 10 नंबर में या 11 नंबर में, मकर में या कुंभ में, और केंद्र में बैठ जाए, 1 4 7 10 में बैठ जाए, तो वो शस राजयोग बना देते हैं, पंच महापुरुष राजयोग बना देते हैं। अच्छा। तो ऐसा आदमी सोसाइटी में बहुत इन्फ्लुएंशियल होता है, उसकी अपनी फैक्ट्रीज, माइंस, इंफ्रास्ट्रक्चर का बिजनेस, ये सब करता है वो। शनि से रिलेटेड जितने प्रोफेशंस हैं, जी। ये सब चीज़ें जो हैं शनि के प्रधान हैं। तो इसलिए बहुत गूढ़ तरीके से इसको पढ़ते हैं हम। कुंडली में 2 चार्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एक लग्न चार्ट है, एक आपका नवांश चार्ट है। लग्न चार्ट आपका अगर शरीर है, उसका जो अपीयरेंस है बाहर से, अच्छा। तो नवांश उसका अंदर का डिसेक्शन है कि ये एक्चुअल में क्या है। सो इफ यू वांट टू सी योर हार्ट फ्रॉम इनसाइड, वो आपको नवांश बताएगा। जबकि नवांश फॉर्च्यून में, डेस्टिनी में, मैरिज के लिए इसको हम देखते हैं। अच्छा। बट मेरी तरफ से तो जो लाइफ का जो सेकंड पार्ट होता है, उससे उसमें नवांश की रीडिंग्स बहुत क्लियरली लिखी रहती वेरी हैं। इंटरेस्टिंग। मतलब इट इज अ साइंस, इट इज सो अ व्हाट यू आर साइंस। सेइंग इज, अगर आपको मैं किसी का हॉरोस्कोप जिसको आप कभी मिले नहीं, मैं जी आपको भेजती हूँ उसकी जी डेट ऑफ बर्थ या जो भी, जी तो आप ये बता सकते हैं अनुमान लगा के या पढ़ के उसको जी कि फिजिकल पर्सनालिटी कैसी होगी, कैरेक्टरिस्टिक्स जी कैसे हाँ, जी होंगे, हाँ, और क्या बिल्कुल उसके मार्गदर्शन के लिए क्या बिल्कुल बिल्कुल प्रॉब्लम्स हैं लाइफ में। एब्सोल्युटली बता सकते हैं। वेरी वो तो नाइस। बहुत आजकल कॉमन है। तो मंगल का क्या, व्हाट इज द स्टोरी बिहाइंड मंगल? बिकॉज मैं बचपन से, हम तो यूपी से हमने सुना है हमेशा कि मंगलिक मंगलिक मंगलिक, बहुत बड़ा, इट्स अ टैबू
मंगल ग्रह है तो बहुत दोष है, मतलब इट इज़ अ अगर किसी कर्म को अंजाम देने की शक्ति है तो वो मंगल में है। मंगल इज स्पीड, मंगल इज पैशन, मंगल इज हॉट, मंगल इज फुल ऑफ एंगर। मंगल अगर 10th हाउस में बैठा है कुंडली के, तो वहां उसको डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिलती है। अच्छा। तो 10th हाउस का मंगल वाला आदमी अपने ऑफिस में डोमिनेटिंग होगा, अपना काम कैसे निकलवाना है वो निकलवा देगा। उसको पता है कि प्रोफेशनली सक्सेसफुल होने के लिए क्या मुझे करना है। तो मंगल एक ऐसी एनर्जी है, मार्शियन एनर्जी जिसको हम बोलते हैं, सोल्जर की एनर्जी है वो। जी। जो हमारे भारतवर्ष के बेस्ट आईपीएस ऑफिसर्स हैं जी। या आईपीएस जिन्होंने Yes. कंपीट किया है, उनका जी। मंगल आप कुंडली में देखेंगे या तो उच्च का होगा या लग्न में ही होगा। हाँ। तो अगर मंगल नीच का हो जाए तो ये बड़ी कठिनाई का विषय बन जाता है। अच्छा। नीच का मंगल 4 नंबर राशि में बनता है। ऐसे जातक का अपने भाई के साथ नहीं पटता है, क्योंकि मंगल भाई का भी कारक है। अच्छा। और ऐसा जातक को खून रिलेटेड बीमारियां हो सकती हैं, ब्लड रिलेटेड डिजीजेस, लो ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर, लो डब्ल्यूसी, डब्ल्यूबीसी, हाई आरबीसी, ब्लड रिलेटेड हो सकता है। गुस्सा उसमें भरपूर होगा, मतलब ऐसा आदमी किसी को हाथ उठाने से पहले शायद नहीं सोचेगा। सद्दाम हुसैन सन हैज डेबिलिटेटेड मार्स, अच्छा। है ना। नाथुराम गॉडसे का डेबिलिटेटेड मार्स था। तो अच्छा। आउट ऑफ द 20 पीपल हु प्लान्ड फॉर द असैसिनेशन ऑफ महात्मा गांधी, उसमें से नाथुराम गॉडसे का नीच का मंगल था। माय गॉड। तो हम और आप तो बंदूक उठा के चलाने की क्षमता नहीं रखता। जी बिल्कुल नहीं। किसी का असैसिनेशन करना है तो उसके लिए एक ऐसी शक्ति होनी चाहिए कि ऐसे लोग मारने से पहले सोचते नहीं हैं, मारने के बाद सोचते हैं। तो नीच का मंगल थोड़ा डिफिकल्ट है। ऐसे लोगों को लाल रंग की गाड़ी, लाल रंग की शर्ट नहीं पहननी चाहिए, क्योंकि लाल रंग उत्तेजित मंगल का करेगा। है और मंगल अगर नीच का है तो उसके नेगेटिव रिजल्ट्स ही आएंगे। तो ये कुछ चीज़ें हैं, अगर मंगल तो नीच का मैं हो आपकी जाए बात तो। से जो समझ रही हूँ, जी। प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, जी, कि जो भी दशा चलती हैं या जो ग्रहों के अपने उच्च या नीच का जो उनकी शक्ति है, वो आप पहली बात तो अगर सही जगह बैठा है तो उसकी पावर से आपको काफी बेनिफिट होगा, जी। और अगर गलत जगह पे है तो आपको नुकसान हो सकते हैं। हाँ, मतलब हर ज़्यादातर जो प्लैनेट्स हैं वो उच्च के होते हैं, जिसको अच्छा। हम एग्जॉल्टेड बोलते अच्छा। हैं, और ओके। नीच के होते हैं, जिसको जी। हम नीच डेबिलिटेटेड बोलते हैं। जी। तो ये जरूरी नहीं है कि हर समय डेबिलिटेटेड प्लैनेट खराब रिजल्ट दे। ओके। अगर अच्छा। कोई डेबिलिटेटेड प्लैनेट कुंडली के 6, 8वें भाव में है तो हम्म। उसके रिजल्ट हो सकता है अच्छे होंगे, अनलेस एंड अनटिल वो राहु केतु सैटर्न के साथ एफ्लिक्टेड नहीं हो, हम्म। तो मोर और लेस उसके रिजल्ट्स अच्छे हों। तो जो भी ये कॉम्बिनेशंस बनते हैं जहां आपको लगता है कि जैसे आपने बताया मंगल अगर निचले घर में है तो आपकी मारने की टेंडेंसी हो जाती है, फॉर 4 नंबर एग्जांपल। राशि में बैठा है तो वहां नीच का हो गया। तो ये यही क्या मंगल अगर मकर राशि में बैठ जाए तो जी। उच्च का हो जाता है। अच्छा, तो मतलब बिहेवियर चेंज हो जाएगा। बिहेवियर चेंज हो जाएगा। मान डेस्टिनी लीजिए चेंज। मंगल उच्च का 3rd हाउस में बैठा हुआ है, तो ऐसा आदमी रेसलर हो सकता है, सोल्जर हो सकता है, बहुत बलवान हो सकता है, बहुत गट्सी हो सकता है। वो कुछ भी कार्य करने से पहले सोचेगा नहीं। उसके आदमी कोई टेररिस्ट भी आ जाए तो ही विल नो हाउ टू टैकल दैट टेररिस्ट विद अ स्किल। ही विल बी अ ब्लैक बेल्ट इन मार्शल आर्ट्स, क्योंकि तीसरा घर शौर्य का है, ब्रेवरी का है, एफर्ट्स का है, पुरुषार्थ का है। और वहीं पर अगर उच्च का मंगल बैठ जाए तो ऐसे आदमी को किसी भी चीज़ में हराना ऑलमोस्ट असंभव है फिजिकली। अच्छा। तो उच्च का मंगल के रिजल्ट्स अलग हो जाते हैं, और उसका मंगल अगर 10th हाउस में बैठ जाए तो उसको तो हम बहुत बहुत अच्छा मानते हैं। हाँ, प्रोफेशनल लाइफ में वो बहुत सक्सेसफुल होता है, क्योंकि मंगल एक ऐसा प्लैनेट है जो आपके किसी भी कार्य को कराने की क्षमता रखता है, कंक्लूड करने की क्षमता तो ये रखता तो है। अच्छी बात है, मुझे बहुत लगता अच्छी है ये बात तो है। बहुत ही, इट इज अ बहुत वेरी बहुत पॉजिटिव बहुत साइन। बहुत अच्छी बात है। तो जी। और लाइकवाइज अदर प्लैनेट्स आल्सो हैव डिफरेंट जी, एट्रीब्यूट। तो राहु की महादशा, केतु या जितने भी हम बोलते हैं महादशाएं चल रही हैं, 7.5 ही चलती है, जी जी। ये सब पहली बात आपका कहना ये है कि नेगेटिव नहीं है तो डरे नहीं। दूसरा, ये सब करेक्शनेबल हैं, इनकी रेमेडीज हम कर सकते हैं टू फिक्स इट। देखिए, राहु की महादशा थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है, क्योंकि राहु का कैरेक्टर है, वो आपको ओवर थिंक कराता है। तो राहु एक्चुअली में तो कोई बॉडी है नहीं। तो राहु तो एक एनर्जी है, मैलेफिक एनर्जी है। वो आदमी को ऑब्सेसिव एनर्जी दे देता है, जरूरत से ज़्यादा पॉजेसिव बना देता है, ओवर थिंक करवाता है। सामने का रास्ता रास्ता खुला हुआ है, लेकिन वहाँ धुआं फेंक देगा तो आपको लगेगा रास्ता ही नहीं है, देयर इज नो लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। अच्छा। ये सारी चीज़ें राहु करवाता है। लेकिन मैंने देखा है कि राहु की महादशा में ही लोग अक्सर पिलग्रिमेज में जाते हैं, और मैक्सिमम पिलग्रिमेज में जाते हैं। उनके अंदर एक अननोन फियर हो जाता है राहु की महादशा में।
उस अननोन फियर को दूर करने के लिए वो भगवान की तरफ भागते हैं। तो ऐसे तो जग जाहिर है कि राहु की महादशा में लोगों को कष्ट होता है, लेकिन ये कम लोगों को मालूम है कि राहु की महादशा में लोग धार्मिक बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। 99.9% चांसेस बनती हैं कि अब राहु की महादशा में एक बार आप वृंदावन जरूर जाएंगे। अच्छा। हाँ, वन ऑफ द बेस्ट रेमेडीज ऑफ राहु इज, अगर राहु आपका खराब है थोड़ा सा, कि आप गंगा में स्नान करें अमावस्या पे, एटलीस्ट 6 अमावस्या डायरेक्टली स्नान करें। ये एक अच्छी रेमेडी है। अपना बाथरूम खुद साफ करें, क्योंकि अंदर का जो WC है दैट इज राहु इन योर हाउस। राहु में हम ये भी कहते हैं कि किसी हैंडीकैप पर्सन की सेवा करें, हाँ जी, है ना? जी जी। बट राहु आपको ओवर थिंक करवाता है। आप अपने बेडरूम का जो पर्दा है उसको बंद करके डिम लाइट्स में आप काम करेंगे। राहु लाइक्स अ लिटिल डार्कनेस इन द रूम। तो ये कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, लेकिन इस कलयुग में अगर बहुत बड़ा पैसा चाहिए तो राहु ही देता है। ओह, राहु अच्छा। अगर लगन में बैठ जाए तो आपसे कुछ ऐसा काम करवाएगा जो नॉर्मल सोसाइटी के लोग नहीं कर पाएंगे, बिकॉज राहु इज ऑल्सो अनकन्वेंशनल। 7th हाउस मैरिज का होता है, वहाँ अगर राहु बैठ जाए तो ऐसे बहुत चांसेस बन जाते हैं कि आपकी मैरिज किसी से हो जो आउटसाइड ऑफ योर कम्युनिटी हो, फॉरेनर हो, अच्छा। और हो सकता है किसी और लैंग्वेज को वो स्पीक करता हो, या उसकी जो कल्चर है वो बिल्कुल भिन्न हो, बिकॉज राहु इज ऑल्सो फॉरेन लैंड, ओह, एंशियंट, बिल्कुल ही एलियन। तो इसमें क्या होता है कि वो राहु आपको फॉरेन लैंड में भी सेटलमेंट करवाने का पूरी क्षमता है उसमें। तो इसको हम अच्छा ही मानते हैं। बिल्कुल सही बात है। ओनली थिंग इज जिसको दैट इट शौक विल है। मेक यू ओवर थिंक। जी। तो आपको जल्दी रात को सो जाना चाहिए। जिनकी भी राहु की महादशा चल रही है वो इन रेमेडीज को फॉलो करें और रात को जल्दी सो जाएं, अदरवाइज इट विल डिस्टर्ब द पीस ऑफ योर माइंड। जी, वेरी नाइस। मुझे आप एक चीज़ बताइए कि आपने हज़ारों कुंडलियाँ देखी होंगी, हर जी लोगों जी की पथरी देखी होगी, तो कोई आपके ऐसे अभी तक के एक्सपीरियंस में कोई आपको लगता है कि ये बहुत ही डिफ़िकल्ट कुंडली थी, जी हॉरोस्कोप था, जी उसका निवारण कैसे हुआ, उसका करेक्शन कैसे हुआ जी कि जी नहीं हुआ? कोई एक्सपीरियंस आप शेयर करेंगे? जी। ऐसे कई केसेस आते हैं मेरे पास जिनकी कुंडली में चंद्रमा डेबिलिटेटेड है, नीच हुँ, का है। हुँ, नीच का कहाँ होता है? चंद्रमा स्कॉर्पियो में होता है, वृश्चिक राशि में होता है। या तो नीच का चंद्रमा हो, या चंद्रमा राहु के साथ ग्रहण दोष बना रहा हो। अरे बाप रे! तो ऐसे आदमी का स्टेट ऑफ माइंड जरा सा वल्नरेबल होता है। हालांकि उसकी ऑब्जर्वेशनल पावर बहुत स्ट्रांग होती है, बट ऐसे लोग बहुत सेंसिटिव हो जाते हैं। आज से 15 साल पहले उनको किसी ने डांटा होगा या थोड़ी बदतमीजी से बात की होगी, उनको वो बात याद होगी। अच्छा, आज से 15 साल पहले उनसे किसी ने अच्छे से बात की होगी तो वो भी बात याद होगी। तो जिनका चंद्रमा नीच का होता है वो ज़्यादा ओवर सेंसिटिव होते हैं। तो उनके परिवार वालों को इस चीज़ का ध्यान देना चाहिए कि उनसे वो ठीक से बात करें, पोलाइटली बात करें। सोच समझ के व्यवहार करें। सेंसिटिव हैं वो लोग, कुछ भी एक्शन ले सकते हैं। नीच के चंद्रमा वाले थोड़े से एडिक्शन में भी जाने की क्षमता रखते हैं। तो अच्छा, अगर नीच का चंद्रमा है और राहु वीनस का कंजंक्शन है, राहु वीनस मून अगर तीनों आ गए और उसमें मून अगर डेबिलिटेटेड हो गया, तो राहु तो ऑब्सेसिव एनर्जी है, वीनस आर गुड थिंग्स इन लाइफ। ऐसी कोई भी एनर्जी जो आपके इंद्रियों को आनंद देती हैं, तो उसमें एडिक्शन भी आ जाता है। तो ऐसा आदमी एडिक्शन में जा सकता है और उसको फिर एडिक्शन से निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अच्छा, तो मेरे लिए ऐसे लोग जिनका चंद्रमा नीच का है, उनको शायद एक बार में अपने कुंडली की एनालिसिस समझ में नहीं आती है। उनको कई बार सेशन देना पड़ता है ओह! और बताना पड़ता है कि ऐसे ऐसे है, ये तो ये मैं आप पहली रेमेडी बार करो। सुन रही हूँ कि एक बार में किसी को समझ में ना आए हाँ, अपनी तो कुंडली। यही मेरे लिए एक डिफिकल्ट पार्ट है, अच्छा, जो कि मैं समझता हूँ इट इज़ अ सर्विस। तो जी। डिफिकल्ट तो नहीं है, बट टाइम ज़्यादा लगता है। बट ये करेक्ट तो हम कर सकते हैं, किसी का अगर ऐसा करेक्ट कर सकते सिचुएशन हैं हो। इफ़ यू आर प्रोवाइडिंग दैट पर्सन राइट एटमॉस्फेयर, अच्छा, क्योंकि वो सेंसिटिव है। तो सेंसिटिव लोग को तो जॉयफुल चीज़ें चाहिए होती हैं, उनसे कोई प्यार से बात कर ले, लव एंड अफेक्शन दिखा दे। जी, और आज के दिन में जो सबसे ज़्यादा कमी है वो लव एंड अफेक्शन की है। बिल्कुल सही बात तो है। इसलिए हाउ डू यू गेट दैट? बिल्कुल सही तो बात। इफ देयर इज एन एटमॉस्फेयर ऑफ लव एंड अफेक्शन एंड इफ देयर इज अ पर्सन ऑफ अ डेबिलिटेटेड मून इन योर फैमिली, यू शुड पे एक्स्ट्रा अटेंशन टू हिम। जी, ओके। आपका एक यूट्यूब चैनल है, जी जो जी। मैंने देखा था, इट इज़ कॉल्ड एस्ट्रोनोन। सही? एस्ट्रोनोमी है, एस्ट्रोनोमी, ASTRO स्पेस KNOW स्पेस ME। So एस्ट्रोनोमी, astronomy, एक्सीलेंट। yeah, yeah. तो मैं It was देख coined by my daughter who's into media and ओह, communication, हाउ नाइस। and so KNOW, मतलब the word astronomy got converted into astronomy. बट दैट्स वेरी क्रिएटिव। Yeah, जी, वेरी नाइस। that is, बट yeah. कोई आपका, एंड आई एम श्योर बिकॉज़ यूट्यूब है तो ग्लोबल रीच भी होती है, हाँ हाँ, एंड बिल्कुल तो होती है। आपकी कोई ऐसे कभी हुआ है कि कोई ग्लोबल क्लाइंट्स हैव रीच्ड आउट टू यू विद अ वेरी ऑर्बिट क्वेश्चन और ऑर्बिट क्वेरी? So अमेरिका, UK, पाकिस्तान, सब जगह से कॉल आते पाकिस्तान हैं। भी?
जी, मैंने शेख हसीना के हॉरोस्कोप के ऊपर मैं टिप्पणी की थी मेरे यूट्यूब चैनल पे, उनके अच्छा। लाइफ के बारे में, उनकी पूरी कुंडली पे एनालिसिस है वाओ। कि ये जो कू हुआ था बांग्लादेश में, जो उनको आउस्ट कर दिया गया, ये क्यों किया गया, उनके साथ क्यों हुआ, तो उसके ऊपर मैंने काफ़ी व्याख्या की है और अपनी किताब में भी इस बात का वर्णन किया है मैंने। तो एक्सीलेंट। उसको देखने के बाद कुछ लोगों का मेरे पास फ़ोन आया था फ्रॉम बांग्लादेश ऑल्सो एंड पाकिस्तान ऑल्सो, और उन्होंने मेरे से सेशन भी लिया था अच्छा, बिकॉज दे फाउंड इट वेरी रिलेटेबल। जो सच बात थी मैंने बताई, बिल्कुल सही बात। तो जो कुंडली में मुझे दिखा मैंने बताया। कोई ऐसे विचित्र क्वेश्चंस की कैटेगरी नहीं होती है, या पीपल कम टू यू बहुत वेरी सारे वेरी विचित्र क्वेश्चंस आते हैं जैसे मेरे कि पास, जैसे कि आप मेरे डॉग का हॉरोस्कोप देख लीजिए, पेट्स का देख लीजिए, तो आई हैव टू फाइंड ओह आउट द गॉड, टाइम ऑफ बर्थ एंड डेट ऑफ बर्थ। सीरियसली? हाँ, कई लोगों का आता जानवरों है। का देख सकते हैं? हाँ, कुंडली तो वेरी आप सबकी इंटरेस्टिंग। देख सकते हैं। अच्छा, दिस ऐसा इज आता है न्यूज़ टू देन, मी, आई डिडंट नो दैट। मतलब मेरे पास आता है हाउ डू आई फाइंड ट्रू लव इन माय लाइफ, ओह। तो वो तो ज़्यादा फिलोसॉफिकल हो जाता है, Philosophical। तो उसको लंबा सेशन देना पड़ता है बट क्योंकि ही ये इज इन चीजें, सर्च ऑफ क्वेस्ट ऑफ ट्रू लव। बट ये चीजें आप, मतलब आप इनका समाधान दे सकते हैं पत्री से? काउंसिल तो कर ही सकते हैं, कोर्स, ऑफ काउंसिल कोर्स। करके ही बहुत कुछ चीज़ें सामने आ जाती हैं। जी जी। तो लोग एनालिसिस करना बंद कर देते हैं, इसलिए उनको सॉल्यूशन दिखता नहीं है, तो इसलिए तो आई हैव हैड मेनी फनी क्वेश्चंस इन माय लाइफ वेरी एंड इंटरेस्टिंग। मैं पहली बार सुना जानवरों का भी जी पत्री हम देख सकते हैं, जी which हाँ, is- बिल्कुल। अच्छा, मेरे को आपसे एक और सवाल है, दैट इफ यू हैड टू टेल somebody who does not know astrology सिंपल फॉर्म में, कैसे समझाएंगे आप? जैसा मैंने कहा कि हॉरोस्कोप एक स्नैपशॉट है आपके बर्थ टाइम का, जिस समय बर्थ हुआ तो आकाश के तरफ एक वो हो गया, ठीक है। जो फर्स्ट हाउस है वो आपका लगन है, आपका लगन आपकी पर्सनैलिटी, आपका ऑरा, जनरली आपकी हेल्थ कैसी रहेगी। तो मैं जल्दी जल्दी 12 हाउसेस का सिग्निफिकेशन बता देता हूँ, बिल्कुल। तो एक किसी भी लेमैन को ये समझ में आ जाएगा। तो फर्स्ट हाउस इज योर हेल्थ, योर ऑरा। ठीक है। अगर वहाँ गड़बड़ी हो गई तो थोड़ा सा प्रॉब्लम है। फर्स्ट हाउस का लॉर्ड 6th, 8th या 12th हाउस में चला गया, वो थोड़ी सी संघर्ष दे देता है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही खराब होता है, कुछ चीज़ों में बहुत अच्छा होता है। जैसे फर्स्ट हाउस का लॉर्ड 8th में आ गया तो ऐसे लोग बहुत एक्सट्रीम पे होते हैं, अच्छा। बट दे सी लॉट ऑफ अप्स एंड डाउन्स इन देयर लाइव्स। सेकेंड हाउस से हम फैमिली, पीस एंड ट्रैंक्विलिटी देखते हैं, उनके एसेट्स देखते हैं फैमिली के, उनकी स्पीच एंड कम्युनिकेशन देखते हैं, उनके संस्कार देखते हैं, उनके फ्रेंड्स देखते हैं, अच्छा, उनके बैंक में कितना पैसा है ये समझ में आ जाता है। इतना? हाँ, ठीक है। उसके एसेट्स, इसके आदमी के पास जमीन है, जायदाद है कि नहीं है। संगत भी देख सकते हैं? संगत सेकंड हाउस से नहीं होती है, ओनली फैमिली, पीस एंड ट्रैंक्विलिटी, और फैमिली के साथ कैसा रहेगा। थर्ड हाउस से हम उसकी ब्रेवरी, उसके गट्स, उसके एफर्ट्स, उसके हॉबीज, उसके पैशंस, उसके नेबरहुड, उसका ट्रैवल का पूरा जर्नी साइकिल वाओ, प्लान, ये समझ सकते हैं। फिनोमिनल। या इट इज। फोर्थ हाउस से हम आपकी माँ के बारे में बता सकते हैं, अच्छा। आपके रियल एस्टेट का बता सकते हैं, एसेट्स का, फोर्थ हाउस से भी। और फोर्थ हाउस में बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए समझता हूँ क्योंकि इससे आपका इंटरनल हैप्पीनेस और इंटरनल ब्लिस का पता चलता है। आपके पास संसार की सारी सुविधाएं हैं पर आंतरिक सुख नहीं है, तो क्या फायदा है फिर। बिल्कुल सही बात तो है, इसलिए मैं ये absolutely। समझता हूँ कि फोर्थ हाउस का स्ट्रांग होना, सुख का जो स्थान है वैदिक एस्ट्रोलॉजी में, उसका स्ट्रांग होना बहुत इंपॉर्टेंट है। Of course। फिफ्थ हाउस आपके बच्चे, आपकी फॉर्मल एजुकेशन, डिग्री कोर्स। फिफ्थ हाउस स्टार्टअप्स। फिफ्थ हाउस से आपकी फैन फॉलोइंग, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली फिफ्थ हाउस इज योर लव अफेयर्स। टेम्पररी जो अफेयर्स होते हैं, वो जो भी? टेम्पररी रिलेशनशिप्स My होते हैं, God, वो आप देख पूरा सकते कच्चा हैं। चिट्ठा है, आप तो सब कुछ कर हाँ सकते हाँ, हैं। फिफ्थ हाउस से तो बहुत चीजें, और आपके पूर्व पुण्य जन्म के जो अच्छा। कार्य थे, जो आपका पास्ट लाइफ बर्थ के जो आपके कर्मास थे, वो फिफ्थ हाउस से पता चल जाता है। वंडरफुल। देन यू मूव टू सिक्स्थ हाउस। सिक्स्थ हाउस को हम रोग, ऋण, शत्रु का घर मानते हैं, दैट इज एनिमीज, बैड डेट्स एंड बैड हेल्थ। तो छठा घर इन सब चीज़ों को, छठा घर सर्विस टू द सोसाइटी को भी दिखाता है। अच्छा, आयरॉनिकल। छठा घर हेल्थ केयर का भी है। फिर हम आ जाते हैं सेवंथ हाउस पे। सेवंथ हाउस इज पार्टनरशिप, मोस्ट इंपॉर्टेंटली योर वाइफ, योर हस्बैंड, शादी का घर है। इफ़ यू आर वर्किंग इन रिटेल इंडस्ट्री तो भी सेवंथ हाउस है। फिर सेवंथ हाउस से हम आपकी रोजी रोटी देखते हैं, जो डेली इनकम है वो भी हम देखते हैं। फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मेरा सबसे प्रिय है वो है एट्थ हाउस जी। एट्थ हाउस इज अबाउट ऑकल्ट साइंस, एट्थ हाउस इज अबाउट मिस्टिसिज्म, एट्थ हाउस इज अबाउट एस्ट्रोलॉजी, तंत्र मंत्र, साधना, वास्तु, टैरो कार्ड रीडिंग, एनीथिंग विच इज बिलो दिस अर्थ, जो इस धरातल के नीचे है। पताल भी हम एट्थ हाउस से देखते हैं। बहुत डीप हाउस है ये।
sudden wealth, sudden gains, sudden incidents of life like accidents. हम्म 8th हाउस से हम बैंकिंग देखते हैं, इंश्योरेंस देखते हैं, 8th हाउस से भी हम स्टार्टअप्स देखते हैं, लेकिन 8th हाउस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन. ओशो रजनीश के 8th हाउस में 4 प्लैनेट्स थे. दैट इज वाई फ्रॉम बीइंग अ रिनाउंड प्रोफेसर इन जबलपुर यूनिवर्सिटी, यस यस वहाँ से प्रोफेसर थे, पढ़ाते थे लोगों को, फिलॉसफी पढ़ाते थे. वहाँ से ही वेंट अहेड टू मेक एन एम्पायर ऑफ हिज ओन इन यूनाइटेड स्टेट्स, ओरेगॉन एंड पूना सिटी. तो उनके टक्कर का कोई लॉजिक वाला आदमी मुझे आज तक तो अपने जीवन में कभी मिला नहीं. और मैंने भी उनकी किताबें पढ़ी हैं, जी संभोग से समाधि तक. इट्स अ वेरी एंटरप्राइजिंग बुक एंड आपको बड़ा मज़ा आएगा पढ़ के. और उनका जो तर्क करने की जो उनकी जो विशेषता थी वो आउट ऑफ द वर्ल्ड. तो ये जो चीज़ थी 8th हाउस, किसी भी व्यक्ति में अगर कोई ट्रांसफॉर्मेशन आना है या उसको अच्छा एस्ट्रोलॉजर बनना है, बिना 8th हाउस की ब्लेसिंग के आप नहीं बन पाएंगे, बिल्कुल नहीं बन पाएंगे. 8th हाउस आयुष भी है, आपकी लॉन्जिविटी को भी दर्शाता है ना. जी जी अब सुशांत सिंह राजपूत जैसा अच्छा एक्टर, जी. उसके 8th हाउस में ही सैटर्न था, जबकि सैटर्न लॉन्जिविटी का कारक है. लेकिन जिस संदर्भ में उसकी डेथ हुई, जी जस्टिस का प्लैनेट 8th हाउस में आके बैठ गया, यानी कि जस्टिस का प्लैनेट डिमाइस के घर में आके बैठ गया. Oh my इसलिए आज तक उसको जस्टिस नहीं मिली. तो आप देखिए कि 8th हाउस का कितना बड़ा सिग्निफिकेंस ओह है. माय गॉड. हमारे इस सदी के सबसे बड़े महानायक श्री अमिताभ बच्चन का 8th हाउस पे ही उनके भी 3 प्लैनेट्स हैं. अच्छा तो इसलिए फ्रॉम अ सिंपल मैन, अ सिंपल पोएट, he became a world class actor. ऑफ कोर्स नोबडी कैन कम्पीट. तो there are lot of things about 8th house. फिर हम 9th हाउस पे आते हैं, जो हमारी डेस्टिनी, फॉर्च्यून, हमारे फादर, रिलीजियस डीड्स, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल, हायर लर्निंग जो आपने डिग्री से नहीं पाई हो, हायर लर्निंग, पीएचडी हो गया, या कोई ऐसी साइंस या विद्या जो आपने एक्वायर की है, वो 9th हाउस करवाता है. अच्छा देन वी कम टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट हाउस, 10th हाउस. 10th हाउस कर्म का है ना. काल पुरुष की कुंडली में 10th हाउस शनि देव रूल करते हैं, क्योंकि मकर राशि है वो. और 10th हाउस से हम स्काई देखते हैं. 10th हाउस आप दिखने में कैसे हो सोसाइटी के सामने, ये 10th हाउस से पता चल जाता है. अरे वाह. अगर आपने किसी को देखा नहीं है, मान लीजिए किसी के 10th हाउस में सूर्य और बुध बैठे हैं, जी तो ये बुध आदित्य राजयोग बन गया. तो ऐसा आदमी बोलने में बहुत अच्छा होगा, ऐसा आदमी प्रतिभाशाली होगा, ऐसा आदमी बहुत इफेक्टिव होगा कम्युनिकेशन में, प्लस अपने प्रोफेशनल लाइफ में. अच्छा सूर्य और बुध अगर बैठे हो तो. 11th हाउस पे आ जाएं तो 11th हाउस को हम एक आशेष भाव बोलते हैं. ये प्रॉफिट का स्थान है, ये एक गेन का स्थान है, ये आपके सोशल नेटवर्क का स्थान है, इन कनेक्ट विद इन्फ्लुएंशियल पीपल इन द सोसाइटी का स्थान है, माय और गॉड. सबसे इंपॉर्टेंट बात आपके बड़े भाई का स्थान है. तो ये 11th हाउस की विशेषता है. 12th हाउस अंतिम पड़ाव है जीवन का. वो 12th हाउस से हम मोक्ष देखते हैं, अच्छा 12th हाउस से हम इम्प्रिजनमेंट देखते हैं, लोनलीनेस देखते हैं, क्योंकि जब आदमी बूढ़ा हो जाता है तो लोनली हो जाता है. तो 12th हाउस मोक्ष का है, लोनलीनेस का है, इम्प्रिजनमेंट का है, लॉसेस का है, अननेसेसरी एक्सपेंसेस का है, अरे बाप. फॉरेन लैंड का है, फॉरेन सेटलमेंट का है. तो ये 12 घरों की व्याख्या मैंने This छोटे is- से उसमें की, हालांकि बहुत और कुछ है. आई एम श्योर बट ये बड़ा मुझे ऐसा लगता था कि एक हाउस में एक ही तरह के ट्रेट्स होंगे, नहीं, बट नहीं, नेगेटिव traits. पॉजिटिव एक साइड हैं. बहुत सारी. और आपने बोला 9th हाउस इज फेथ एंड डेस्टिनी. डेस्टिनी, Very interesting. I want एंड to फादर ask- आल्सो. And father, I want to ask you, do you think faith and destiny and astrology they go hand in hand, or faith and destiny exist? कुंडली में नवांश में जो 9th हाउस होता है, वो आपका प्रारब्ध बनाता है. प्रारब्ध एक ऐसी चीज है जो एक बार ईश्वर ने लिख दिया, कोई एस्ट्रोलॉजर, कोई संत उसको चेंज नहीं कर सकता है. अच्छा हाँ, इस प्रारब्ध को समझाने के लिए मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताऊंगा, Please, जो मैं please. अक्सर अपने कंसल्टेशन में लोगों को बताता हूँ. कि आज से कई वर्ष पूर्व विनायक नाम का एक प्राणी महाराष्ट्र में रहता था. तो उसके 3 पुत्र हुए, पर किसी कारणवश तीनों पुत्रों की मृत्यु हो गई, चल बसे वो लोग. जी तो एक ज्योतिषी के पास गए विनायक. तो उन्होंने कहा कि मुझे पुत्र मोह है, तो आप बताएं कब होगा मेरा पुत्र. तो ज्योतिषी ने उनकी कुंडली देखी और कहा कि देखिए विनायक जी, आपके प्रारब्ध में आपको बेटा होना लिखा नहीं है ना. अच्छा आप पुत्र मोह छोड़ दीजिए, अच्छा मुश्किल है. तो उसका दिल टूट गया विनायक का. फिर वो गए घर पे, उन्होंने ट्राई किया, तो चौथी बार उनकी एक पुत्री हो गई. अच्छा फिर भी वो हिम्मत नहीं हारे, क्योंकि पुत्र का मोह था. ही हैड अ लस्ट फॉर हैविंग अ सन. ऑफ कोर्स.
सो उन्होंने ट्राई किया तो 5वीं बार उनको एक पुत्र हो गया। अच्छा, हाँ, तो गए ज्योतिषी के पास कि आपने तो कहा था कि पुत्र होगा नहीं। बिल्कुल। तो ज्योतिषी ने कहा कि देखिए ऐसा है कि मैंने कहा था कि आपको पुत्र नहीं होगा, और अगर हुआ तो आपकी यश, मान, प्रतिष्ठा, कीर्ति पे वो दाग लगा देगा। ओह! बोले मैं क्या करूं, क्या रेमेडी है इसकी? तो बोले आप उसको एक पुत्री की तरह उसका पालन पोषण कीजिए। अरे बाप रे! ग्रूम हर अप लाइक अ डॉटर। तो उन्होंने उसकी नथ लगाई, उसकी चुटिया बनाई, उसको स्कर्ट पहनाया, कई साल तक समाज में उसकी ग्रूमिंग ऐसी तक की। 20-22 साल के बाद मुश्किल हो गया तो उसको वापस पुत्र में कन्वर्ट करके उसके ज़ाहिर कपड़े सी बात वपड़े, है। जी, उसका रूप रंग चेंज करके जी। उसको समाज में फिर वैसे ही जाने दिया। जी। पर इसी पुत्र ने, जो विनायक का 5वां पुत्र था, 1948 30 जनवरी को इसी पुत्र ने महात्मा गांधी को गोली मार दी। ओह माय गॉड! His name was Nathuram Godse दिस इज़ अ and ट्रू his father स्टोरी। was Vinayak Godse. दिस इज़ अ ट्रू स्टोरी। This is a आई एम true गेटिंग story. गूज़बम्प्स, माय गॉड! तो विनायक गॉडसे के 9th हाउस में ऐसा प्रारब्ध था जी। कि उसको अपने पुत्र से उसकी कीर्ति प्रतिष्ठा पे My दाग God. लगेगा ही लगेगा। तो उफ़! प्रारब्ध को आप चेंज नहीं कर सकते हैं। फ्री विल तो हम जो रोज काम करते हैं वो है हमारी फ्री विल, और एक संचित कर्म है जो कि एक्यूमुलेटेड कर्मास है, तो वो भी कभी कभी आपको फल देते हैं। कई लोग बोलते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मैंने किसका क्या बिगाड़ा था। हाँ, बहुत लोग तो बोलते हैं दैट ऑफ इज योर कोर्स। संचित कर्मा के रिजल्ट्स, या पास्ट लाइफ बर्थ में कुछ ऐसा किया था आपने जो आपका रिजल्ट है। भोगना पड़ता है। तो ये जो चीजें हैं, हाँ, 9th हाउस आपको अपनी अगली लाइफ के बारे में भी बताने की शक्ति रखता है। अच्छा। हाँ, दिस पॉइंट आई मिस्ड। तो एक ये भी चीज है। तो प्रारब्ध अगर कोई समझ ले, डिकोड कर ले, यही सबसे मुश्किल है डिकोड करना। तो उसको इस बात की संतुष्टि हो जानी चाहिए कि ये मेरा प्रारब्ध है, इसको एक्सेप्ट कर लो, हाँ, रिजेंट मत हाँ, करो आई थिंक इसको। एक्सेप्ट करने में आपको व्हेन यू नो कि ये लिखा है, तो जी आई जी, थिंक एक्सेप्टेंस इज़ द ओनली वे टू मूव फॉरवर्ड। एब्सोल्युटली आई एग्री। एब्सोल्युटली। On that note, I would want you to, if there is any one piece of wisdom that you would want to give to the audiences who want to know about astrology or who do not know about astrology but are interested. देखिए, डेथ इज द अल्टीमेट ट्रुथ। मृत्यु अंतिम सत्य है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। तो अगर मृत्यु अंतिम सत्य है तो ये क्या विजडम देता है? एक स्टडी हुई थी जिसमें साधारण तरीके से पाया गया कि एक आम आदमी का जो जीवन है इस धरती पर 36,500 डेज का है, और उस 36,500 डेज में 33,000 डेज तो उसके आम मर्रा की जिंदगी में चले जाते हैं। ऑफिस आना, कम्यूट करना, ट्रैफिक में टाइम वेस्ट रोज का करना, mundane. बच्चों को देखना, होमवर्क कराना, दवाई जाना, डॉक्टर के यहाँ जाना, तो 33,000 डेज तो उसके ऐसे ही चले जाते बाप रे. हैं। गिन के उसके पास मात्र 3,500 डेज बचते हैं। ये जो 3,500 डेज है, ये हर एक आदमी को अपना कैलेंडर बनाना चाहिए और मार्क करना चाहिए कि इस साल एटलीस्ट 40 डेज तो मैं अपने आप को दूंगा। अब भले आप रामेश्वरम जाएं, मानसरोवर जाएं, कहीं भी जाएं, पर ऐसी कोई चीज करें जो आपको सच में आपको संतुष्टि मिले। चाहे आप वेकेशन पे जाएं, सोलो Wow. ट्रिप पे जाएं, कोई किताब लिखें, आप किसी गांव में चले जाएं, एकांत में चले जाएं, या फिर वर्ल्ड टूर करें। कुछ ऐसा जरूर करें जिससे कि आपको रहते रहते हैप्पीनेस मिले। हम ये क्यों कहते हैं कि आत्मा को शांति मिले? वाई सही नॉट बात कि है. रहते रहते मिल जाए I think हैप्पीनेस, ये है तो ना? आपने पर्सपेक्टिव ही दूसरा दिया है. हाँ। आई थिंक पीपल इन योर फील्ड यूजुअली, जो आपने सही बोला, हम मोक्ष और आत्मा की शांति पे ही आके स्थिर हो जाते हैं. हाँ, पर ये जो आपने पर्सपेक्टिव दिया, आई थिंक दिस इज अ वंडरफुल पॉइंट हाँ, ऑफ मतलब व्यू वी टू शुड बी हैव. प्रोग्रेसिव इन लाइफ। हम इस जीवन में सिर्फ दुख झेलने तो नहीं आए हैं। बिल्कुल सही बात तो जब हमें मौका मिले हमें एंजॉय करना चाहिए, है ना? है जी. दूसरा ये था कि इन द क्रोनोलॉजी ऑफ ऑल द प्लैनेट्स आप देखेंगे कि अगर सभी की महादशाओं को आप ऐड कर दें तो वो 120 साल की महादशा बनती है सारे प्लैनेट्स की, अच्छा. है ना? वीनस, केतु, बुध, सबको आप ऐड कर लें। लेकिन ऐसा क्यों है कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी में दैट Jupiter's 16 years of Mahadasha is followed by Saturn's 19 years of Mahadasha. यस यस. It is not that Venus के बाद शनि आ रहा है, it is not that केतु के बाद शनि आ रहा है, it is that बृहस्पति के बाद ही शनि आता है। ऐसा क्यों है? जी. ये क्रोनोलॉजी तो चेंज भी हो सकती थी, हाँ, ऑफ कोर्स. बट व्हाट हैपेंड कि गॉड हैज मेड, ईश्वर ने ऐसी ही क्रोनोलॉजी रखी है बिकॉज जुपिटर यानी कि भगवान बृहस्पति का जो मेन एट्रीब्यूट है वो धर्म है, राइटियसनेस है, विजडम है, गुड कर्मा है। तो धर्म यानी कि बृहस्पति, और शनि क्या है? हार्ड टास्क मास्टर, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लैनेट ऑफ जस्टिस। यस.
जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जज बैठते हैं, दैट इज लॉर्ड सैटर्न, जिनके सामने आप बोलते हैं यस माय लॉर्ड आई हैव कमिटेड दिस क्राइम, ये है लॉर्ड सैटर्न। अच्छा। तो जिस आदमी ने बृहस्पति की महादशा में अनैतिकता का रास्ता लिया है, इमोरलिटी, और जिसने धर्म का साथ नहीं दिया है, वो बृहस्पति शनि से यही बोलते हैं कि इस मनुष्य ने इस 16 साल धर्म का साथ नहीं दिया, इसलिए जो जस्टिस आपको देना है आप दीजिए। इसीलिए 70% ऑफ द पीपल दे सफर इन सैटर्न Oh my महादशा। God, you have simplified this so तो easily. इसलिए जिसकी जुपिटर की महादशा आए उसमें धर्म का साथ नहीं छोड़ें। धर्म का मतलब हरे रामा हरे कृष्णा नहीं है, धर्म का मतलब है राइटियसनेस। आपके यहाँ स्विगी वाला डिलीवरी करने आया, बरसात हो रही थी, आधा घंटा लेट हो गया, आपने उसकी कंप्लेन कर दी, ये अधर्म है, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि किस संदर्भ में, किस सर्कमस्टांस में वो उसने आपको डिलीवरी दी। सही बात है। आपका ड्राइवर 2 दिन की छुट्टी पे चला गया, उसकी माँ बीमार थी और आपने उसकी सैलरी काट दी, ये अधर्म है। आपका कोई स्टाफ था, वो टाइम पे नहीं पहुंच पाया, वो बेचारा 3 जगह बस बदल के आता है, आपने उसको डांट दिया, ये अधर्म है। और छोटी छोटी तो चीजें ये जो हैं। अधर्म आप कर रहे हैं, आपको रियल लाइफ में इसका पेनेंस तुरंत मिल जाएगा। जो अच्छा। लोग अपने हाउसकीपिंग स्टाफ को बहुत डांटते हैं, अपने स्टाफ को से दुर्व्यवहार करते हैं, सैटर्न उनको पनिश करेगा ही करेगा। सैटर्न डजंट लाइक पीपल हु मिसबिहेव विद देयर स्टाफ। आई एग्री। एक छोटी सी ये बहुत बहुत जग जाहिर बेसिक बात चीजें है, हैं। बहुत आई थिंक ये बहुत हाँ, एक आपकी और रूटेड व्हेन यू आर ग्रोइंग अप ना, बिल्कुल। मॉरल्स एंड दैट वैल्यू एंड पार्ट ऑफ अ बिल्कुल। कल्चर। इसी तरह से राहु और केतु के बारे में आप देखें तो ऐसा आदमी जो बहुत ज्यादा दिखावा करता है, अच्छा। आजकल तो दिखावा का ही ज्यादा ये है, राहु केतु का जमाना है ऐसे कहते हैं। वो इन्फ्लुएंस है राहु से। और जो आत्मचिंतन करता है, जो सेल्फ अवेयरनेस, जो इंटरनल इंजीनियरिंग, सेल्फ इंजीनियरिंग, इनवर्ड इंजीनियरिंग, जो अंदर झांक के देखता है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ माय लाइफ, वो केतु प्रधान है। अच्छा। तो केतु वाले नॉर्मली ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करते हैं अपने सुख और दुख को, इनएक्सप्रेसिव होते हैं, बट अंदर ही बहुत खराब तरीके से तड़पते हैं। राहु वाले जो हैं पूरी दुनिया को जग जाहिर कर देते हैं कि जो मंदिर में जो नाच रहा है हरे रामा हरे कृष्णा, वो बाजों के साथ, हारमोनियम के साथ, ही इज राहु। और उसी मंदिर के परिसर में जिसने हाथ जोड़ के कोने में जो बैठा हुआ है, आत्मचिंतन जो कर रहा है, ही इज केतु। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है राहु और केतु का, बिकॉज राहु he interfaces you with all the, you know, the chamak dhamak of life, and ketu makes you look inward. वेरी नाइस। तो राहु कैमरे का भी प्रतीक है, अच्छा। इसलिए वो कैमरे पे आना पसंद करते हैं। राहु ऑनलाइन बिजनेस का भी प्रतीक है। राहु स्टॉक्स एंड शेयर्स एंड ट्रेडिंग का भी प्रतीक है। अच्छा। राहु और मरकरी का कंजंक्शन को हम स्टॉक्स के लिए अच्छा मानते हैं। अगर दोनों की कंजंक्शन अच्छी है, दोनों मित्र भी हैं और अच्छे घर में बैठे हुए हैं, कमाई के घर में बैठे हुए हैं, 11th हाउस में बैठे हुए हैं, अच्छी राशि में बैठे हुए हैं, 6 नंबर राशि में बैठ जाएं, वहाँ पे मरकरी एक्सॉल्ट हो जाता है, उसके साथ राहु बैठ जाए, उसको हम बहुत अच्छा मानते हैं। जाहिर सी बात है, क्योंकि राहु एक्सप्लोजन है। अच्छा। और बुध जो है वो आपका लॉजिकल दिमाग है। तो एक्सप्लोजन और लॉजिकल दिमाग आपको वर्ल्ड क्लास बिजनेसमैन बना सकते हैं। एक्सीलेंट। हमारे अमित शाह जी जो होम मिनिस्टर हैं, उनके 10th हाउस में राहु और मरकरी है। अच्छा। 10th हाउस प्रोफेशन का है। अच्छा। ही इज अ ग्रेट इंटेलिजेंट पर्सन। या तो ये सब कुछ कॉम्बिनेशंस हैं। तो आपने, आई थिंक, आई एम श्योर पीपल हु आर वाचिंग दिस वुड एग्री विथ मी, आपने इतना इजी, रिलेटेबल और सिंप्लीफाई करा है एस्ट्रोलॉजी को दैट आई फील दैट इट इज लाइक अ रिपोर्ट कार्ड। एट द सेम टाइम इट इज लाइक अ टूल दैट यू It वांट is टू actually रेफर a टू। report card of your past life karma. या It is a very simple definition कि ये आपके past life karma और पता नहीं कितनी past lives का रिपोर्ट कार्ड है। एक्सीलेंट। अब हम चलते हैं थोड़ा ऑन द लिटिल लाइटर साइड ऑफ थिंग्स, बिकॉज आपने बोला कि लाइफ को हमेशा पॉजिटिवली लेना जी, चाहिए। जी, तो ऑन अ पॉजिटिव नोट आई हैव अ रैपिड फायर सेक्शन। हाँ, डोंट शूट मी डाउन। नो नो, नॉट एट ऑल। हाँ, आपको जो हाँ। जी में आए, पहला जो आपके अंदर से जो आवाज आए वही आंसर हम लेंगे, जी जरूर। ठीक है? योर ज़ोडिएक साइन। By English astrology, Western astrology, I am a Sagittarius. ओके But वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से I am a कन्या राशि and a कुंभ लगन। ओके, इंटरेस्टिंग। ओके, सन साइन यू वाइब विद द मोस्ट। Taurus and अच्छा, Aries both। दोनों से? हाँ। अच्छा। Which planet would make the best party guest? Venus, शुक्राचार्य, Really? चमक धमक। अच्छा, ये आप हिंदी तिथि से बता रहे हैं? नहीं, ये मतलब एक ऐसा, Venus is all the good things Right. in life. हाँ हाँ, Men are from Mars, women are from of Venus. course. All the good things in So life. women make Exotic. better party guests then. I think so. Yes, ठीक I है। think so. I'll take that then. Yeah, yeah. What's more dramatic, human beings or Mercury retrograde?
मरकरी रेट्रोगेट के तो फिर भी कोई समाधान है, ह्यूमंस का नहीं है. बिल्कुल तो सही. डेफिनेटली ह्यूमंस. ठीक है. One funniest question your client has asked. One client sent me for his matrimony match 4 horoscopes. कि who will be the best match. So I told him this is the best match. जी. So he said कि okay, I can get married to this girl. How about having some affair with the other 3 girls? So that was very funny, and he wanted a solution for that. मतलब but So- I have to give it to him for being so unfiltered. Yes, absolutely. ठीक है. Funny, okay, we've done that. If you could decode the chart of any historical figure, who would you pick? भगवान राम. कर्क लगन था उनका, जुपिटर और मून गज केसरी राजयोग उनके लगन में ही था. शस राजयोग 4th हाउस में था, सैटर्न एग्जॉल्टेड था. बट 4th हाउस माँ का भी होता है, सैटर्न दुख का कारक है. उनकी जो माँ थी कहीं उन्होंने तो दुख दिया ही जी. उनको. जी. वीनस और केतु का कंजंक्शन उनके भाग्य में था. वीनस आपकी वाइफ है, केतु सेपरेशन है. बाप तो रे. माँ सीता उनसे 2 बार सेपरेट हुई थी. एक बार जब उनका अपहरण हुआ था और एक बार जब वो धरती में समा गई थी. तो वीनस और केतु ने उनकी मैरिटल लाइफ को कहीं ना कहीं खराब किया. 11th हाउस में सन और मरकरी है. इसको हम बहुत अच्छा मानते हैं. बुधादित्य राजयोग है. जी. तो भगवान राम की कुंडली बहुत अच्छी थी, बट उनकी माँ के कारण उनको दुख का भी सामना करना पड़ा. ओह. 14 साल का. बाप रे. और कुछ प्रारब्ध ऐसा था दशरथ का कि जब भगवान राम पैदा हुए थे तो गुरु वशिष्ठ ने उनको पहले ही कह दिया था कि जिस दिन ये बनवास जाएंगे, इनके बनवास जाने का कारण तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगा. ओहो. तो वैसा ही हुआ कि जब जी, वो बनवास of पे course, निकले तो of course. वो परलोक से धार गए. जी. तो भगवान राम की कुंडली श्रेष्ठ है कई मानों में, क्योंकि 2 पंच महापुरुष राजयोग हैं और बहुत ही उत्तम कुंडली है. सूर्य उनका 10th हाउस में था, एग्जॉल्टेड था, सॉरी, बुध के साथ नहीं था. और बुध उनका 11th हाउस में था. बट अच्छा. उनके कुंडली में गज केसरी राजयोग, जुपिटर और मून का कंजंक्शन, जो कि एक बहुत ही सत्यवादी बनाता है. और एक सबसे बड़ी बात, छठा भाव जैसे कि मैंने समझाया दुश्मन का होता है, उनके छठे भाव में धनु राशि थी. धनु राशि एक ब्राह्मण राशि है और ये शत्रु का घर है. तो जो रावण था उनका शत्रु, वो ब्राह्मण. एक्चुअली में एक स्कॉलर था. हाँ, of course, of course. तो छठे भाव से यहाँ तक पता चल जाता है कि आपके शत्रु की क्वालिटी क्या हो. तो ये बहुत अच्छी मतलब एक बात निकली उसमें से. अच्छा. तो काफ़ी रिसर्च का मैटर है, बट भगवान राम की कुंडली को हम श्रेष्ठ मानते हैं और अच्छा. हमारे लिए तो काफ़ी पूजनीय है. जी. तो वी स्टार्ट विद हिज चार्ट एंड देन व्हेन आई स्टार्टेड लर्निंग आई स्टार्टेड विद हिज चार्ट. अच्छा. हाँ, आई डिड Okay. रिसर्च ऑन हिज चार्ट एंड देन आई वेंट फॉरवर्ड. Very interesting. अच्छा. Given a choice, would you want to have coffee with Saturn or cocktail with Venus? You cannot have cocktail with Venus unless you have had coffee with Saturn. कर्म करेंगे तभी तो उसका फल मिलेगा. तो This you is a must good one. have coffee with Saturn first, do the karma and then enjoy the results of your karma in form of Venus. Excellent answer. Yeah, very nice. Okay. One astrological myth that you want to bust right now. Astrology is not a remedy center. It is a way to uncomplicate your life. So read astrology, go to an astrologer to find a GPS route of your life and of your soul. But don't take it as a remedy कि आज मैंने पायराइट की वो ब्रेसलेट पहन गई तो कल मेरे पास 2 करोड़ रुपए आ जाएंगे. ऐसा नहीं होने वाला है. तो इट्स अ मिथ कि इट्स अ रेमेडी सेंटर. ऐसा है नहीं. Right. रास्ता दिखा सकते हैं कि कौन सा प्रोफेशन चूज करना है, कौन सा डिग्री कोर्स करना है आपको, कौन सी सिटी में आप जाके कर सकते हैं, क्या आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा, नौकरी या व्यवसाय. ये सब चीज़ें हम बता सकते हैं. बट आप उसको ये बोलें कि मेरा डाइवोर्स हो रहा है और इसकी रेमेडी बता दीजिए, तो हम आपको बताएंगे कि रियल लाइफ में क्या करना है. आप उसको एकदम रेमेडी सेंटर मत समझिए कि हम आपके लिए कोई मंत्र पढ़ेंगे और डाइवोर्स नहीं होगा. नहीं होगा. ऐसा नहीं होता है. ठीक है. One zodiac sign you want to travel the world with. टॉरस. क्योंकि आपकी अच्छी बनती है टॉरस से इसलिए. हाँ, वृषभ राशि. ठीक है. बिकॉज उनका लॉर्ड वीनस है, मेरे लगन का लॉर्ड सैटर्न है. ठीक है. If not astrology, what would you choose as an alternative career? फिल्म एक्टर. अरे वाह. I was very inclined to become towards So acting. for all the producers, directors जो देख रहे हैं, आपके पास ऑप्शन है. Yes, I truly can give an audition. Absolutely. This is wonderful. Very nice. I think I've never had so much fun with anybody on the show so far. You have been a great, great guest, Yashi, and I think you've enlightened us with such basic and correct nuances of life. मुझे लगता है कि ये सबको सुन के ये लगेगा कि it is a science
that It is a science. productively used to enhance your life and guide you in your See, life. astrologers or astrology never questioned science. When Albert Einstein invented E is equal to mc square, no astrologer challenged him. Of course. Because astrology is older than science. जब भगवान Yeah. जब ऋषि पराशर थे तो क्या था साइंस? एस्ट्रोलॉजी थी. बिना टेलीस्कोप के अगर आपने ये बता दिया, टेलीस्कोप का आविष्कार तो बहुत साल बाद हुआ था, जो कि साइंस है, पर उन्होंने ये बता दिया था कि शनि की दूरी सूर्य से कितनी है, या शनि किसी भी राशि में 2.5 साल रहते हैं, या सूर्य किसी भी घर में 1 महीने के लिए रहते हैं, या मून फास्टेस्ट प्लैनेट है सोलर हाँ, सिस्टम का. हाँ. ये तो उन्होंने तब बताया था जब जब टेलीस्कोप विज्ञान भी भी नहीं नहीं था, था. जब विज्ञान भी नहीं था. तो जी. एस्ट्रोलॉजी इज ओल्डर देन साइंस. तो हाउ कैन साइंस क्वेश्चन एस्ट्रोलॉजी? बिकॉज एस्ट्रोलॉजी हैज नेवर क्वेश्चन साइंस. एल्बर्ट आइंस्टाइन से ये तो नहीं पूछा कि इजिकल टू एमसी स्क्वायर जो तुमने निकाला है वो ट्रुथ भी है कि नहीं है, उसका कुछ हमने उसका मान लिया. है भी कि नहीं. बट हमने मान लिया. हम सबने मान लिया. पर साइंस इज न्यू, एस्ट्रोलॉजी इज ओल्ड. एक प्लैनेट है केतु जो जड़ों को दिखाता है, और जिस कुंडली में सैटर्न केतु का कंजंक्शन है वो एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर बनता है, क्योंकि सैटर्न इज कर्मा, केतु इज रूट्स. तो अपना कोई भी एक ऐसा प्रोफेशन पकड़े जो रूट से रिलेटेड हो, स्पेशली एस्ट्रोलॉजी, वो बहुत सक्सेसफुल होगा. तो अगर ये बात सच है तो जो वर्ल्ड के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर्स हैं उनकी कुंडली में आपको सैटर्न और केतु का कंजंक्शन जरूर मिलेगा. वंडरफुल. ये think this is a कोई भी bright- एस्ट्रोलॉजर देख रहे हैं, ये मेरी बात से इत्तेफाक रखेंगे, और ये बात सच भी है. ऐसा आदमी ग्राउंडेड भी होता है, बहुत सरल होता है, जी. क्योंकि एस्ट्रोलॉजी सीखने के लिए आपको सरलता का साथ लेना पड़ेगा. और मेरा ऐसा मानना है जहाँ सरलता है वहाँ ईश्वर है. बिल्कुल सही बात है. तो I ये agree. साइंस इज वेरी वेरी डिफरेंट, एंड बिना सरलता के इसको सीखना बहुत मुश्किल है. On that note, Yashi, I will take 5 minutes of my time to tell you that I have absolutely had a blast talking to you in this session, and I'm going to Likewise. call you again for a Oh part yes, 2 because it will be a अभी मेरी pleasure. conversations खत्म नहीं हुई, मेरी जी, इच्छाएं जी. अभी भरी नहीं है. जी जी. तो मुझे आई बिल्कुल. थिंक बहुत सवाल हैं, वास्तु हो, ऑकल्ट हो, एस्ट्रोलॉजी में ही आई एम श्योर हमारे पास our viewers will also have lot of questions. Oh yes, yes. Yeah. मैं हर एक हाउस के बारे में आपको डिटेल में बता सकता हूँ, और काफी हेल्पफुल होगा आपके व्यूअर्स को. बिल्कुल. वास्तु के बारे में हम चर्चा कर सकते हैं. जी. कोशिश यही रहेगी कि जितना मैंने सीखा है और सीख रहा हूँ हर हम्म. दिन, कोशिश करूंगा जितना ज्ञान अर्पित किया है उतना आगे देने की कोशिश करूंगा. जी. So on that note, to all my audiences watching this, if you have any questions that you want to ask from Yashti directly, please write on hashbrownconversations@gmail.com. I repeat, hashbrown, one word, conversations, one word, hashbrownconversations@gmail.com. कुछ भी questions हो आपके पास, please don't hesitate. We will pass it on to Yashti. And you know the book, Simplified Sutras of Vedic Astrology. ज़रूर खरीदें, पढ़ें, और डरिए मत एस्ट्रोलॉजी से. आप ये समझिए कि आपके लिए गाड़ी का ड्राइव करने के लिए मार्गदर्शन के लिए जैसे जीपीएस है, वैसे आपकी लाइफ के मार्गदर्शन के लिए एस्ट्रोलॉजी है. Thank you so much, Yashji. Most welcome, and thank you for calling me. Thank you, Yashji. It's been It a has been pleasure. a truly It's an pleasure. honor. Thank you. Thank you. Thank you so much.